Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start our class 4 mathematics book which name is Mathematics Whirlwind Brain Root series, and today we will start with our chapter 11 fractions. So let's start the chapter of today's. First we will talk about fraction. Fraction क्या होता है? A fraction is a part of whole. फ्रैक्शन क्या होता है? एक पार्ट होता है होल अमाउंट का, लाइक 1/2, 1/3, 2/3, राइट चिल्ड्रन? सो इसमें जो 4 है ये क्या है? आपका होल नंबर, और इसका क्या पार्ट है? 1 पार्ट है, राइट? ऐसे यहाँ पर 2 इज द होल नंबर एंड 1 इज द पार्ट ऑफ इट. नाउ फॉर एग्जाम्पल, हाफ ऑफ एन एप्पल इज अ फ्रैक्शन ऑफ एन एप्पल. अगर हम बात करें एप्पल की तो इसका अगर हम हाफ पोर्शन करेंगे तो इट विल बी हाफ ऑफ एन एप्पल, राइट? अ फ्रैक्शनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P और Q, और इसको हम फ्रैक्शनल वैल्यू को किस फॉर्म में लिखते हैं? P अपॉन Q. P denotes numerator and here Q denotes denominator, right? If we will see 1/4, so 1 is the numerator and 4 is the denominator. Now we will talk about finding fractions. कैसे हम find out करते हैं? Let's see. To find 1/2, divide by 2. For example, 1/2 of 14. तो हमने क्या करना है? 14 का 1/2 पार्ट निकालना है, तो आंसर विल बी 7, राइट? बिकॉज 2 7 जा 14, राइट? ऐसे ही सपोज टू फाइंड 1/3 डिवाइड बाय 3, तो हमें क्या करना है? 1/3 ऑफ 27, तो हमें क्या करना है? 3 से 27 को डिवाइड करना है. सो 2 9 जा 27, आंसर विल बी 9. I hope you understood the method. Now we will proceed with the another part. If we will talk about exercise 11.1, we will see tell what fraction of each shape is shaded. हमें क्या बताना है? जो हमारी ऑलरेडी शेडेड पार्ट है वो कौन सा फ्रैक्शन वैल्यू में आता है, राइट? सो फर्स्ट वी हैव टू काउंट द होल नंबर. कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो होल नंबर क्या होगा आपका? 8. एंड नाउ वी हैव टू काउंट द कलर्ड पार्ट ऑफ इट. 1 2 3 4 5 6 7. सो इन फ्रैक्शनल वैल्यू वी विल राइट इट लाइक 7/8. because fraction is a part of whole. So in the same way you have to attempt question B, C, D and E. Alright children, let's proceed further in the topic. So in question number 2, as you all can see, shade the given fraction in the collections given below. So children, if we will talk about question 2, तो यहाँ पर क्या आपको fraction value given है, you just have to represent them in the shaded part. अगर आप suppose 1/4 है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? suppose कोई भी एक shape given है तो it is the 4, 1 2 3 4. Now you have to represent 1/3 और 4. तो क्या करोगे? केवल उसका 1 पार्ट आप शेड कर दोगे. So this will represent 1/4. 4 is the whole number and 1 is the shaded part here, right? So you have to attempt the same method and you have to solve the questions. So if we will talk about question 3, so here we have to find out the value. हमें क्या करना है? जो fractional value दी है उसको सॉल्व करना है. सपोज 1/2 ऑफ 18, हमें 18 का क्या निकालना है? 1/2 करना है. तो हम क्या करेंगे? सिंपली वी विल जस्ट डिवाइड. 2 9 जा 18, सो आंसर विल बी 9. इफ वी विल सी 1/3 ऑफ 18, तो वी विल सी 3 6 जा 18, तो आंसर विल बी 6. So by following method you have to attempt all the remaining exercise by your own. Let's proceed further and we will see the another things. Now we will talk about equivalent fractions. अब हम किसकी बात करेंगे? Equivalent fractions की बात करेंगे. Look at the following. हमें क्या करना है? जितनी भी digits और जितनी भी आपको diagrams given है वो आपको carefully देखना है. Suppose Mary's cake, आपका जो मैरी का केक है वो कितना है? ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4. 2 is the whole number, 1 and 2, and here it is colored part 1. तो आपका क्या हो जाएगा? 1/2. This will represent 3/4. This will represent 1/4. ऐसे ही आपको क्या करना है? पीटर्स केक, पीटर का जो केक है वो क्या है आपका? 2/4. इसमें क्या है? 6/8. यहाँ पर क्या है? 2/8. सो आई होप यू गॉट द थिंग्स. जितना भी होल नंबर होता है उसका जो शेडेड पार्ट होता है वी विल रिप्रेजेंट इन द न्यूमरेटर पार्ट. What do Mary's and Peter's cake show? क्या वो शो कर रहे हैं? They are presenting about fraction values. They show that two different fraction indicate the same part of cake. हमारी क्या है? जितनी भी 2 fractions है different वो क्या कर रहे हैं? केक के सेम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Such fractions are called equivalent fraction. वो क्या बताते हैं? उसी को equivalent fraction कहते हैं. All right? If we will see about 2/4, तो इसका भी मतलब क्या होगा? 1/2. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. So this is equal like Mary's cake and Peter's cake, right children? So they both are representing the same value in the fraction. So here you have to try this out question. Values are given. Color 1/3,
आपको क्या करना है 1/3, तो 3 इज द होल नंबर 1 2 3। आपको क्या करना है, केवल 1 पार्ट को क्या करना है बेटा, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। ऑल राइट, ऐसे आपको क्या करना है, कलर 2/6। आपको 2/6 बताना है, तो हेयर होल नंबर इज 6, 1 2 3 4 5 6। तो हेयर यू जस्ट हैव टू कलर द 2 पार्ट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी आपके शेडेड पार्ट्स हैं वो डिफरेंट है, एंड यू हैव टू प्रोसीड विद द क्वेश्चंस गिवन बिलो दिस चार्ट, राइट। If we will proceed for exercise 11.2, so we will see for first question, write fractions for the shaded parts। हमें क्या करना है, जितने भी shaded part हैं उनके fraction value यहाँ पर mention करना है। Are these fraction equivalent or not, क्या ये जो हमारे fractions हैं वो equivalent हैं या फिर नहीं है। So as you can see here, what is representing 1/2, क्योंकि 1 is the shaded part and 2 is the whole number, so it will represent 1/2। यहाँ पर whole number कितना है, 1 2 3 4, so it will represent 2/4 because the shaded part is 2, right? So again you have to solve these remaining questions by following the same method. So if we will talk about question number 2, color the following to show the equivalent fraction। आपको क्या करना है, equivalent fraction को show करते हुए color करना है, right? Values are already given like 1/4 and 2/8। तो here 8 is the whole number and 4 is the whole number। यहाँ पर सिर्फ 1 को आपको क्या करना है, 1 ब्लॉक को कलर करना है, यहाँ पर आपको 2 ब्लॉक्स को कलर करना है। I hope you understood. You have to attempt the questions by following the same method that we have learnt in this chapter. All right children, so all the remaining parts are all based on the same method. Now we will see how to find out equivalent fraction। equivalent fraction को कैसे find out करते हैं, let's talk about it। Multiply numerator and denominator of a fraction by the same number अदर दैन 0। हमें क्या सीखना है, अगर हम किसी भी नंबर को, न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, देन वी विल सी। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7, तो हम कैसे करेंगे, सेम नंबर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और सेम ही नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, सो इट इज़ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर हमने दूसरा नंबर पिक किया 3, तो हमने क्या किया, 3 से ही न्यूमरेटर में, 3 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। सो आंसर विल बी 4 3 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर इन डिनोमिनेटर एंड इन द न्यूमरेटर, राइट। As you can see, divide numerator and denominator for a fraction by the same number। दूसरा मेथड क्या है, अगर हमें क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर लें, सेम नंबर से हम उसे न्यूमरेटर में डिवाइड करें, सेम ही नंबर से डिनोमिनेटर में डिवाइड करें, सो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, 5 से ऊपर न्यूमरेटर में डिवाइड किया, 5 से ही डिनोमिनेटर में डिवाइड किया, सो आंसर विल बी 5/8 एंड इट विल बिकम एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ if we will talk about exercise 11.3, we will see first question, write the first 5 equivalent fraction of। अगर हमें first 5 equivalent fraction देखना है चिल्ड्रन, so what do we have to do, हमें क्या करना है, continuation में केवल multiplication करते जाना है सेम नंबर से। अगर स्टार्टिंग के 5 पूछे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1 करो पहले, फिर 2 करो, फिर 3, देन 4, देन 5। लेट्स सी विद मी। 7/9 इज द डिजिट, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 7 से सबसे पहले 1 में करना है, ठीक है, उसके बाद 7 से 2 में करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, 3 से करना है, राइट, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, 4 से करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, 5 से करना है, सेम अमाउंट से क्या करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करना है, देन यू विल फाइंड आउट योर आंसर। सेम मेथड you have to follow for 2/5, right? So this is the method, these are equivalent fraction, okay? Write the next third equivalent fraction for each। आपको करना है नेक्स्ट थर्ड बताना है कि इसकी जो नेक्स्ट थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी। जैसे 1/2, 2/4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बेटा 4/8, राइट चिल्ड्रन। तो इस तरीके से आपको रिमेनिंग पार्ट को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। ऑल राइट, आई होप यू गॉट द मेथड एंड यू आर एंजॉइंग द क्लास। सो इफ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव टू फिल द करेक्ट ऑप्शन हेयर। आपको देखना है कि कौन सा पार्ट है, सपोज 1/3 है, तो आपको क्या करना है, अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1 ज़ा 2, तो आपको क्या करना है, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर विल बी 2/6। ऑल राइट, लेट्स सी। सपोज हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर विल बी 2 1 ज़ा 2 एंड 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पर 6 से किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 6 4 ज़ा 24, राइट, तो यहाँ पर भी क्या करना है, 4 से 4 का ही मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़ा 16, so this will be the method, all right।
So please follow the same method and resolve all the remaining questions. And question number 4 you have to attempt. आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है जिससे कि आप क्या करें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मैच कर पाए. ऑल राइट, नाउ वी विल लर्न हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट ऑफ टू फ्रैक्शन. जितने भी आपके इक्विवेलेंस होता है टू फ्रैक्शन में, वो कैसे लाया जाता है. फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड. सबसे पहले हमें न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद हमें डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करना है. एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द न्यूमरेटर ऑफ द सेकेंड. फर्स्ट का तो डिनोमिनेटर एंड सेकेंड का न्यूमरेटर. इफ द टू क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल, और क्या होगा, दोनों का अगर प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा, द फ्रैक्शंस आर इक्वल एंड द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. वो दोनों ही इक्वल होंगे और इक्विवेलेंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल वी विल सी 1/2 इज इक्वल टू 4/8. हमें कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट. 8 1 8 एंड 4 2 8. सो इट विल बी इक्विवेलेंट बोथ द डिजिट्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो इन द सेम वे आपको क्या करना है, 6 2 12 एंड 7 2 14. सो अगेन हमने क्या किया, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई किया, राइट. ऐसे आपको क्या करना है, 3 4 12 एंड 5 4 20. सो वी जस्ट हैव टू multiply with the same number in denominator and in the numerator. Now we will see आपके form solutions you can see over here. 8 1 8 and 4 2 8. अगेन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे आपको क्या करना है, 14 6 लिखना है एंड 12 7 लिखना है. So you just have to attempt all the remaining part by your own. If we will talk about the another part which is divide the greater number and denominator by the smaller numerator and denominator in the same order. Let's see with the example part. हम कैसे कर सकते हैं. In the above example we will see 4 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर will be 4. अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे again the answer will be 4. So these both are equivalent. 1/2 कहें, है ना बेटा, या तो हम 1/2 कहें या फिर 4/8 कहें. ऐसे ही आपको 12 को 6 से करेंगे तो 6 2 12 होता है, 14 को 7 से करेंगे तो 7 2 14 होता है. तो अगेन द आंसर पार्ट विल बी सेम. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ऐसे ही आपने क्या किया, 12 को 3 से डिवाइड किया सो आंसर विल बी 4. अगर आपने 20 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर विल बी 4. 3 4 12 एंड 5 4 20. सो सेम डिजिट्स वी आर यूजिंग हेयर. आई होप यू अंडरस्टूड द मेथड. सो इफ वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 11.4 यू कैन सी चेक वेदर द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और नॉट. आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये जो फ्रैक्शन वैल्यूज हैं इक्विवेलेंट हैं या नहीं. उसके लिए आपको क्या करना है बेटा, you just have to multiply with the same digit in the numerator and the denominator, right. आपको क्या करना है, सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई करके देखना है. इफ द आंसर इज इक्वल इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर देन ओनली योर फ्रैक्शन विल बी इक्विवेलेंट, अदरवाइज आंसर विल बी डिफरेंट. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्रैक्शंस इन द लोवेस्ट टर्म. अब हम बात करेंगे फ्रैक्शंस को कैसे लोवेस्ट टर्म में लिखते हैं. लेट्स सी. A fraction is in its lowest term if 1 is the only common factor of the numerator and the denominator. जो fraction है वो अपनी lowest term में कब हो सकता है, जब उसके numerator और जो denominator उसमें common part क्या हो, only 1 हो. Let's see. Here we have a fraction 14/50. यहाँ पर एक fraction given है 14/50. So factors क्या होंगे, सबसे पहले 14 के 1 2 7 14. एंड इफ वी विल टॉक अबाउट फैक्टर्स ऑफ 50 तो वो क्या होंगे, 1 2 5 10 25 50. तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया चिल्ड्रन, सो दिस विल बी द कॉमन फैक्टर. 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है. सो इसमें क्या होगा, हेंस 14/50 इज नॉट इन द लोएस्ट टर्म. क्योंकि क्या है इसका, ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, क्योंकि सिंस इट हैज़ 2 1 एंड 2 कॉमन, इसमें 2 भी कॉमन है, इसमें 1 भी कॉमन है, तो हम उसे क्या मानेंगे, कॉमन नहीं मानेंगे. अगर सिर्फ केवल 1 कॉमन होता 14 में भी और 50 में भी, ओनली देन इट विल बी इन द लोएस्ट टर्म. ऑल राइट. रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म. किस तरीके से हम एक फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट. टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. हम क्या करते हैं, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं. लेट्स सी विद द एग्जाम्पल पार्ट. 8/16 हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है. 8 को डिवीजन करेंगे तो 2 से दोनों में कर लिया डिवीजन, आंसर विल बी 4/8. फिर दोबारा से 4/8 को किससे डिवाइड किया, 2 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो आंसर अगेन 2/4. तो 2/4 का हम क्या लिखेंगे, फिर दोबारा से और शॉर्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे, अगेन हमने किया तो आंसर विल बी 1/2, राइट. सो हेयर 1/2 विल बी द आंसर, तो इट इज इन द
लोएस्ट टर्म, हमें तब तक डिवाइड करते हुए जाना है तब तक हम उसकी लोएस्ट टर्म तक नहीं पहुंच जाते हैं. अगेन वी विल सी अनदर शॉर्टकट मेथड हाउ टू फाइंड आउट द लोएस्ट टर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन. 8/16, हमें क्या करना है, 8 को 8 से हमने न्यूमरेटर में भी डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी. आंसर विल बी 1/2, राइट. अब हमने क्या किया, 1/2. अब हमने दूसरी डिजिट ली बेटा 30/42, राइट. इसको हमने क्या किया, ऊपर भी 6 से डिवाइड एंड डिनोमिनेटर में भी 6 से डिवाइड किया, तो आंसर विल बी 5/7. ओके, सो दीज ऑल आर इन द लोएस्ट टर्म. अभी इनकी क्या है, लोएस्ट टर्म बन चुके हैं, तो इट इज़ द शॉर्टकट मेथड. ऑल राइट चिल्ड्रन, if we will talk about exercise 11.5, we will see first question. Find if the given fractions are in their lowest term. हमें find out करना है कि क्या ये जितनी भी fractions है वो अपनी lowest term में हैं या नहीं. So here you have to use the division method which is the shortcut method. आपको क्या करना है, same digit से numerator और denominator में division करना है, then you will be able to find out the lowest term. Reduce each of the following fraction to its lowest term. हमें क्या करना है, जितनी भी fraction value given है उनको उसकी lowest term तक रिड्यूस करना है. सो अगेन यू कैन सी द फॉलोइंग मेथड, ओके, बाय मल्टीप्लिकेशन और बाय द डिविजन मेथड. यू कैन यूज बोथ द मेथड्स, राइट. क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट टर्म. हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में. अगेन लोएस्ट टर्म गिवन है, वी जस्ट हैव टू सॉल्व देम. 12 मिनट्स ऑफ 1 आवर. 1 आवर का अगर हम 12 मिनट्स निकालें तो कितना होगा, तो 1 आवर में कितना होता है, देयर विल बी 60 मिनट्स. तो आपको क्या करना है, 12 मिनट्स बताना है उसका, ठीक है. तो 60 का 12 मिनट कितना होगा, राइट. तो वही डिवीजन मेथड यू विल यूज हियर एंड देन यू विल फाइंड आउट द आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ वी विल टॉक अबाउट फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द गिवन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. हमें कैसे, अगर न्यूमरेटर दिया है डिनोमिनेटर दिया है तो कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स सी. फिल इन द ब्लॉक्स फॉर्म में आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि 3/9 है, तो इस ब्लॉक में क्या आएगा, आंसर आपका 54 है. तो हम 9 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 54 आ जाए. तो हम क्या करेंगे बेटा, 9 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से करेंगे, राइट, बिकॉज 9 6 54. ऑल राइट. तो ऐसे यहाँ पर भी क्या करना है, 6 3 6 18. तो ब्लॉक में क्या डिजिट आएगा, इट विल बी 18. सो इन एग्जाम्पल 2 आपको अनदर क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन देयर. क्या करना है आपको बेटा, 6 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आए, तो आंसर विल बी 5 बिकॉज 6 5 30. अब आपको 150 से वैल्यू में जाना है, तो आपको क्या करना होगा, 150 को 5 से डिवाइड करना होगा, राइट. तो आंसर विल बी 30 ओवर हियर, क्योंकि 30 5 कितना होता है आपका 150. ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड. लेट्स प्रोसीड फर्दर. If we will talk about exercise 11.6, so again we have to do fill in the boxes. आपको क्या करना है, सेम मेथड को फॉलो करके जो बॉक्सेस में वैल्यूज आएंगी आपको फाइंड आउट करनी है. ऑल राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन. ओके, तो वी विल टॉक अबाउट लाइक फ्रैक्शन. इफ द डिनोमिनेटर्स आर द सेम इन ऑल द गिवन फ्रैक्शन देन दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिनके डिनोमिनेटर वैल्यूज बिल्कुल सेम होते हैं. सपोज 1/2, 5/2, 3/2. सो डिनोमिनेटर में 2 इज देयर, तो इट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन, इफ द डिनोमिनेटर इन द गिवन फ्रैक्शंस आर डिफरेंट, और अगर हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं देन इट इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. सपोज 2/3, 3/7, 5/8, ऑल द डिनोमिनेटर्स आर different here. Now we will see the another types of fraction. So I hope like and unlike fraction is clear to you all. Where denominator is same, that is called like fraction. Where denominators are different, that is called unlike fraction. Now we will talk about comparing like fraction. क्या करना है हमें कि like fraction को हम आपस में कैसे comparison कर सकते हैं. In the like fraction, the comparing can be made with the help of numerator. किसके help से comparison होता है, numerator की help से. In the like fraction, the denominator are the same, but the numerators are different. इस तरह के fraction में क्या होता है बेटा, denominators are same, but the numerators are different. Hence, if the numerators of a fraction is greater than the other, then it is called greater. Otherwise, smaller. इसमें हमें देखना है कि क्या चीज़ greater है और क्या चीज़ smaller है. अगर हमारा जो denominator है वो greater than है तो उसको हम greater कहेंगे, और अगर वो small है तो उसे smaller कहेंगे, right? So as you can see, 3/5 and 4/5 are the like fraction because numerator 4 is greater than 3. Therefore 4/5 is greater than 3/5. All right, क्योंकि इसका क्या है बेटा, जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन है, और जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है वही हमारी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होती है.
नाउ वी विल लर्न अबाउट ऑर्डर इन फ्रैक्शन. हम किसी चीज़ों को ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन. हम कैसे लाइक फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं. इन अ ग्रुप ऑफ लाइक फ्रैक्शन इट कैन बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ न्यूमरेटर. किसकी हेल्प से करना होता है हमें? न्यूमरेटर की हेल्प से. अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में भी लगाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिजिट का न्यूमरेटर देखना होता है. फॉर एग्जाम्पल 3/8, 2/8, 5/8, तो हम क्या देखेंगे? यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सारे सेम है, तो वी जस्ट हैव टू लुक आफ्टर फॉर न्यूमरेटर पार्ट, राइट. तो आपका 1/8, 2/8, 3/, तो आपको क्या देखना है? सीक्वेंस देखना है. तो स्मॉल टू बिग की तरफ जाते हैं असेंडिंग में, तो इस तरीके से हमने इनको अरेंज कर लिया है. नाउ वी विल सी अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए क्या देखना होता है? वी जस्ट हैव टू अगेन न्यूमरेटर्स को ही हमें देखना होता है कि क्या क्या न्यूमरेटर हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इनको पुट करते चले जाते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम इन ऑल द डिजिट्स. सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द न्यूमरेटर पार्ट. नाउ वी विल टॉक अबाउट 11.7. फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द लाइक फ्रैक्शन. आपको लाइक फ्रैक्शन सर्कल करना है. लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? वेयर डिनोमिनेटर आर सेम. ओके, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हमें क्या करना होता है? लाइक फ्रैक्शन बताना होता है. तो इन क्वेश्चन नंबर 1 आई विल हेल्प यू आउट टू फाइंड आउट. जैसे सपोज क्या होता है बेटा, आपका सेम किस किस में है? एक तो आपका 4 डिनोमिनेटर है, इसमें आपका डिनोमिनेटर सेम है, इसमें डिनोमिनेटर सेम है, ओके, और इसमें डिनोमिनेटर सेम है. सो दीज आर लाइक फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर आर दी इक्वल्स एंड सेम. ओके, नाउ पुट अ क्रॉस ऑन दी अनलाइक फ्रैक्शन. आपको क्या करना है? अनलाइक फ्रैक्शन पे क्रॉस बनाना है. सो आपको पता होना चाहिए अनलाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस वेयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, जहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं. तो एज यू कैन सी कहाँ कहाँ पर डिफरेंट है. तो यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, राइट, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है. अदरवाइज इन सब में क्या है? आपका 8 जो है वो डिनोमिनेटर सेम है. सो दीज आर आपके अनलाइक फ्रैक्शन. इन सब पे आपको क्या बनाना था? क्रॉस बनाना था. आई होप यू अंडरस्टूड. फॉलोइंग रिमेनिंग क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट बाय योर ओन. सो काइंडली रिवाइज द फॉर्मूलाज इन द चैप्टर एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट. सो इन द सेम मैनर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पे क्रॉस करना है. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. फॉर दैट यू हैव टू लुक आफ्टर द न्यूमरेटर. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है. देन क्वेश्चन 7 में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा स्मॉलर देन है और कौन सा ग्रेटर देन है. ऑल राइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट मोर ऑन फ्रैक्शंस. किस तरीके से हम फ्रैक्शन के बारे में और चीज़ें जान सकते हैं. अभी तक हमने 2 टाइप्स रिवाइज किए थे, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन. Now we will talk about proper fraction or improper fraction. Let's talk about proper fraction. Observe the given example. जितने भी आपको given दिए हुए यहाँ पर examples उन्हें हम देखेंगे बेटा, सब में क्या है? different है. So these are proper fraction. A fraction whose numerator is smaller than denominator is called a proper fraction. जिसका जो numerator होता है बेटा वो smaller than होता है, उसको हम क्या कहते हैं? proper fraction कहते हैं. If we talk about improper fraction, so improper fraction whose numerator is greater than denominator, जिसका जो numerator होता है वो greater than होता है denominator से, that is called improper fraction. As you can see, improper fraction can also be expressed as mixed fraction. उसको हम mixed fraction के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. For example 1/2, यहाँ पर जो 1 है वो numerator है, 2 is the denominator, तो वो क्या हो गया आपका बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन. अगर इफ आई टॉक अबाउट 5/4, तो 5 इज द न्यूमरेटर एंड 4 इज द डिनोमिनेटर, सो दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. आई होप यू अंडरस्टूड. लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज. एज यू कैन सी इन एक्सरसाइज 11.8 यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर लाइक फ्रैक्शन एंड विच आर अनलाइक फ्रैक्शन. कौन से लाइक फ्रैक्शन होते हैं और कौन से अनलाइक फ्रैक्शन होता है, ये हमने अभी रीड किया है, राइट चिल्ड्रन. ऐसे हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में रीड किया है. सो यू हैव टू टेल कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. हमने जस्ट रिसेंट रीड किया, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होता है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ वी विल लर्न अबाउट द कन्वर्जन. हम कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं. ऑल राइट, टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कैसे हम एक मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रैक्शन चैप्टर. हियर यू हैव टू कन्वर्ट 5 2/7 इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. उसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा? क्या करना होता है? 7 में 2 को ऐड किया और 1/7, राइट. आपने 5/1 मान लिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर यू विल राइट 2/7.
7। तो अब आपको क्या करना है, 5 का मल्टीप्लिकेशन 7 से करना है और उसमें 2 को ऐड करना है, राइट। 5 का मल्टीप्लाई 7 से और इसमें 2 का एडिशन करना है। तो आप क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे। ओके, सो आंसर विल बी 37/7। 5 7 जा 35 प्लस 2 अपॉन में क्या है आपका 7, तो आंसर विल बी 37/7। दैट इज द फॉर्मूला। 7 5 जा 35, 35 में 2 ऐड किया 37, 37/7। दैट इज द मेथड टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू अ improper fraction. Now we will see the questions based on the same formula. In question number 5 you have to tell which are mixed fraction. कौन से mixed fraction होते हैं? So as you can see यहाँ पर क्या कौन से हैं, जितने भी fractions given है these are mixed fraction. हमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करना है. We just have to add the numerator and then we have to solve. 2 2s are 4 and 1 5. 5/2 will be the answer. So that is called mixed fraction, right? So I hope you will be able to attempt all the question based on the same type. So you have to attempt all the remaining question till question number 7. Now we will see operations in common fraction. कैसे हम common fraction में operations करते हैं, let's see. Here we will discuss the addition of fraction. कि fraction का जो addition होता है वो कैसे होता है. Addition of like fraction. अगर हमें like fraction given हो तो उसका addition हम कैसे करेंगे. Add 7/24, 5/24 and 6/24. तो आपने देखा कि डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज है, इट मीन्स दीज ऑल आर लाइक फ्रैक्शन. सो वी जस्ट हैव टू ऐड द न्यूमरेटर पार्ट. हमें क्या करना होगा, केवल इनके न्यूमरेटर पार्ट को ऐड करना होगा. देन वी विल फाइंड आउट द आंसर, राइट. 7 + 5 + 6/24 बिकॉज इट इज कॉमन इन ऑल द फ्रैक्शन. वी विल पिक इट ओनली वन टाइम. तो 7 + 5 आपका और 6 क्या होता है 18. तो आंसर विल बी 18/24. सो इन लाइक फ्रैक्शन हमें क्या करना होता है बेटा, केवल न्यूमरेटर पार्ट को ऐड करना होता है. वी जस्ट हैव टू पिक द सेम डिनोमिनेटर. सो एज यू कैन सी इन एक्सरसाइज 11.9 द एडिशन ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस आर गिवन ओवर हियर एंड ऑल आर लाइक फ्रैक्शन बिकॉज डिनोमिनेटर वैल्यूज आर सेम इन ऑल द क्वेश्चंस. सो यू जस्ट हैव टू ऐड द न्यूमरेटर पार्ट. Option A I am doing for you all. The remaining part you have to attempt by your own. So if I will add 1/3 and I will pick only 6 because it is same in the both digits. So answer will be 4/6 and this is a like fraction. Okay. Now we will see subtraction of fraction. हम किस तरीके से subtraction कर सकते हैं fractions value के अंदर. आपको क्या करना है 19/37 minus 15/37 आपको minus करना है. Again we have same digits in the denominator part. So what we will do here, we will only subtract the numerator part. The denominator part will be same. So 19 में से 15 गया 4. So answer will be 4/37. I hope you got the topic. So in exercise 11.10 you have to subtract all the questions by following the same method. As you can see in the denominator part values are almost same, right? So it will be very easier for you to solve out. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for upcoming new video.